last sentence was uh, has comes after singular number. Okay. Yes, I have especially come back. मैं खास तौर पर वापस आया for the purpose of Ritu because Ritu is not very strong about present simple tense. She was having some doubts and confusions. Now I'm giving you a couple of more sentences. Sarika, have I given you this sentence? आमिर खान किस तरह की फिल्में साइन करता है? Yes, sir. You have given. Write down the next sentence. कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है. Renu, speak the Hindi sentence, please. कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है. Correct. पूर्ण विराम. Tell me who made the last sentence yesterday. Has comes ऐसा कुछ था. Sir, Poonam Bhabhi. Okay. So according to the regular sequence, who should be the next? I think Ritu made the last. Yes, Ritu Ritu di. made the last. Ritu made. So Before after Ritu, whose go is this? It's my go. Go ahead. Mm. This sentence belongs to present simple. It is a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is nobody. Very nice, Aparna. That is very good. Later on, I will take the first form of the verb, and the first I will borrow with. नहीं, हाँ, नहीं, I will borrow a helping verb, and the helping verb is does. Later on, I will take the negative word, and the negative word is not, nobody. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is make mistake. And the lastly, I will take the adverb, and the adverb is knowingly. Yes. Knowingly, deliberately, Deliberately. purposefully. Thank Sir, you, Nobody. Aparna. intentionally. Intentionally is also correct. Whose go is this next? Sir, it's my go now. Okay, go ahead. Okay. This sentence belongs to present simple tense and it is a negative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is no one. Later on, I will take the first form of the verb and the first form of the verb is make mistake and I will put s with the make because our subject is singular number. Very So nice. verb But is make. wait here for a second. Ladies, make mistake is absolutely correct verb, Sarika.
लेकिन यहाँ हम तुम लोग को एक और क्रिया से परिचित करा रहे हैं। हो सकता है पहले कभी बताया भी हो, और नहीं भी बताया तो अब मिल जाएगा। कभी इसका प्रयोग सुना देखा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Come. He commits suicide. ने सुसाइड कर लिया। Deeper, commit suicide is a verb, phrasal verb. And sir has given. Sarika is correct. I have already given commit suicide and commit crime. But here we are using commit word separately. Ritu, Sarika was absolutely correct. Here we are using commit verb separately, and we are using mistake as a noun. We all know that mistake is a noun. Now go ahead. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is commit, and I will put s with the commit because our subject is singular, so verb is commits. Thereafter, I will take the object, and the object is mistake. Lastly, I will take the adjective, and the adjective is intentionally. Nobody adverb. अरे हाँ intentionally, adverb. Lastly, I will take the adverb, and the adverb is knowingly, and then I will put full stop at the end of the sentence, and sentence is nobody commits mistake knowingly. दोस्तों शब्द बदल बदल के बोलते जाना, पहले सेम टू सेम सेंटेंस बोलना है, बस एडवर्ब बदलना। तुम्हारे पहले वाला अगर नोइंगली रख ले तो तुम डेलिबरेटली रख लेना, पर्पसली रख लेना, इंटेंशनली रख लेना। सब लोग अलग अलग जितना कोशिश कर सको प्लीज। सारिका यू कैन स्टार्ट। जी, nobody commits mistake purposely. कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। अपर्णा दी। Nobody commits mistake knowingly. कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। रेणु भाभी। Nobody commits mistake deliberately. कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। देखो। Nobody commits mistake intentionally. कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता है। पूनम। Sir, nobody commits mistake knowingly. What is the another word for जानबूझकर? Are you asking anything? I could not hear. Yes, Please sir. come again. What is another verb, adverb for जानबूझकर, sir? Knowingly, purposely, deliberately, and a fourth one is spoken by Sarika. Intentionally. Intentionally. Nobody commit mistakes knowingly. Ladies, write down the next sentence. Very small sentence. And the sentence is मेरा मतलब है dash 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 dash. मेरा मतलब है dash 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 dash.
Aparna made the previous sentence. So according to the sequence, who has to make the... Yes. Please go ahead. Ritu, please listen carefully, especially the description. Listen the description carefully. मेरा my मतलब means. Okay, this sentence belongs to present simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the sentence and subject, and the subject is I. Then I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is mean. And I will put S. And sir, I don't know. I means I don't know whether it is right or not. मेरा मतलब है. रेनू, अगर हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर वो सही लगे तो तुम्हारा सेंटेंस भी सही होगा. आई लव्स यू. I mean. Okay, that is not right. Okay. I-M-E-A-N mean here. So मेरा मतलब है. ओके. ऋतु, जो हम तुम्हें सुनाना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया. So I am calling Poonam to make this sentence with proper description. This sentence belongs to simple present tense. This is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is mean. Lastly, I will put the dash dash dash. Complete sentence should be I mean. Okay. And now I am inviting Sarika to give proper description. Ritu, now listen. Okay, sir. This sentence belongs to present simple tense, and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, lastly, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is mean. So sentence is I mean. चलो अपर्णा, तुम थोड़ा डिस्क्राइब करके बोलती हो, एक मौका तुम्हें भी दो. सर, उस पे सिंगुलर प्लूरल का भी बताना था क्या? अपर्णा. This sentence belongs to present simple. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Later on, lastly, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is me. Then I will put the dash dash dash. चलो सारिका, तुम बता दो डिस्क्रिप्शन. सेंटेंस तो बन गया. Why are you taking directly verb with I? जी. We are taking directly. I am taking directly verb because our subject is plural number, and verbs always remain plural number by birth. But sir, I तो यहाँ पे ये प्लूरल है, पर Singular sometimes. I तो कभी कभी सिंगुलर भी होता है. तो I work as a BPL, bill pendika lota. Sometimes he acts as a singular number, and sometimes it acts as a plural number. But here I act as a
plural number. So that's why I put mean as it is. आई यहाँ बहुवचन की तरह कार्य कर रहा है। ये बिन पिंडी का लोटा होता है। और बताइए आई एक वचन की तरह दो जगह काम करता है, उन दोनों जगहों को बता सकता है कोई? दो चैप्टर। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं, वहां तो और पास्ट कंटिन्यूअस। नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस सही है। एक और कोई बताए। पास्ट कंटिन्यूअस इज राइट। आई Past वाज perfect. गोइंग। हाँ, Past perfect में. पास्ट Past परफेक्ट में तो perfect. सिंगुलर प्लूरल का कोई नहीं, present perfect में I have. वहां बहुवचन होता है बेटा। फिर से आई के साथ हैव लगता है, फिर से बहुवचन होता है। आई दूसरी जगह कहाँ एक वचन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा आई एम। बेटा आई के प्रेजेंट साथ कंटिन्यूअस में एम आ रहा है तो एम का जन्म ही केवल आई के कारण हुआ था, वरना एम नाम की सहायक क्रिया दुनिया में किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगती है। ही एम, शी एम, वी एम, यू एम हो ही नहीं सकता। ये इस कंत्री के कारण ही एम नाम की सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया को बनाना पड़ा अंग्रेजों को, नहीं तो एम की कहीं कोई जरूरत थी ही नहीं। एम वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। सर बी प्रेजेंट में? नहीं बेटा, बी प्रेजेंट में आई एम होता है। चलो हम बता देते। बी पास्ट आई के साथ वॉज लगता है ना बेटा। आई वॉज बिजी, he was busy, she was busy, we were busy, they were busy, Munu and Pappu were busy, Modi ji was busy, my mom was busy। सबके साथ एक वचन के साथ वॉज लग रहा है, आई के साथ भी वॉज लग रहा है। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। बी पास्ट, यहाँ आई एक वचन हो जाता है। आई वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ आई एक वचन हो जाता है। आई वॉज थिंकिंग, आई एक वचन हो जाता है। शी वॉज थिंकिंग, ही वॉज थिंकिंग, वी वर थिंकिंग, दे वर थिंकिंग, everybody was thinking, all the guys were thinking। तो यहाँ आई एक वचन होता है, बी पास्ट में एक वचन होता है, पास्ट कंटिन्यूस में एक वचन होता है। प्रेजेंट सिंपल में बहुवचन की तरह व्यवहार करता, प्रेजेंट परफेक्ट में फिर से बहुवचन की तरह व्यवहार करता। आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैज नहीं लगता। कल ही हमने देखा कि हैज कम्स आफ्टर सिंगुलर नाउन, वहां फिर आई बहुवचन हो जाता है। आई बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल कोई इसे ढूंढ के लाए ना। कुछ नहीं है। अब एक शेर है सीधा सीधा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं तो कोई बेवफा होता नहीं। तो अंग्रेज ऐसा नहीं कि बेवफा थे, उनकी मजबूरी थी आई के साथ उनको एक सहायक क्रिया बनानी पड़ी। आई के कारण उनको एक नई सहायक क्रिया बनानी पड़ी, एम नाम की। मजे से लगाते आ रहे हैं पिछले 27 साल से, सब जानते। लेकिन आई और एम की जो प्रेम कहानी है वो आप नहीं जानते, वरना हम बड़े आराम से बोल रहे होते ना। आई इज आशीष झा, आई इज आशीष झा। आई एक वचन है, इज लगाओ, एम की क्या जरूरत। शी इज सारिका, शी इज रितु, शी इज पूनम, शी इज अपर्णा, शी इज रेणु, आई इज आशीष। भाई सभी तो नाम है, हम भी तो नाम रख रहे हैं अपना। आई इज आशीष, शी इज सारिका। चलो एक चुटकुला सुनाते हैं। शुड आई क्रैक ए जोक? प्लीज सर। एक अंग्रेज आया इंडिया में
और एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे उतरा, जहाँ मुश्किल से एक आध गाड़ी रुकती थी, बाकी निकल जाती थी, रुकती नहीं थी। अधिकतर आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आपकी गाड़ी हर स्टेशन पे रुकती नहीं, तो बहुत छोटे जो होते हैं उन पे सुपरफास्ट या फास्ट ट्रेन रुकती नहीं। तो वो एक छोटे से स्टेशन पे उतरता है अंग्रेज, और अब अंग्रेज लोग जब आते हैं तो किसी अधिकारी से बात करना चाहते हैं, तो सामने खड़े सज्जन से पूछते हैं, वेयर इज द टीसी, नो सॉरी, वेयर इज द रेलवे, नहीं, वेयर इज द स्टेशन मास्टर, वेयर इज द स्टेशन मास्टर, सामने खड़े एक बंदे से पूछते हैं। अब संयोग की बात देखिए, सामने जो बंदा खड़ा था वो खुद स्टेशन मास्टर, लेकिन अंग्रेज क्यों नहीं पहचान पाया, सुनिए। हमारे स्टेशन मास्टर बढ़िया पंडित जी थे, पूजा पाठ वाले थे, अच्छा बड़ा सा तिलक लगाते थे, चोटी करते थे, और थोड़े हेल्दी थे तो अपना कुर्ता पहनते थे, ऊपर से बंडी पहनते थे ब्लैक कलर की, और नीचे धोती रहती, बढ़िया तिलकधारी। क्योंकि उस स्टेशन पे अधिकारी आते ही नहीं थे, तो वो व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म और ब्लैक कलर का कोट नहीं पहनते थे। अगर वो ऐसा पहने होते तो अंग्रेज समझ जाता कि ही इज द स्टेशन मास्टर। तो अंग्रेज बोलता है, वेयर इज द स्टेशन मास्टर। संयोग की बात कि अपने जो स्टेशन मास्टर थे वो थोड़ी अंग्रेजी जानते, अब एग्जाम वगैरह निकाला होगा तो थोड़ी अंग्रेजी तो जानते थे। बोलते, आई एम द स्टेशन मास्टर, बड़े गर्व से बोले, आज बहुत सालों बाद उनको अंग्रेजी की जरूरत पड़ी। बोलते, आई एम द स्टेशन मास्टर। अब अंग्रेज को विश्वास नहीं हुआ, बोलता, यू आर द स्टेशन मास्टर। बोलते, यस, आई एम द स्टेशन मास्टर, यू आर द स्टेशन मास्टर। अब जब उसने 2-3 बार पूछ लिया तो स्टेशन मास्टर को लगा, यार मैं ग्रामर की गलती कर रहा हूँ, ये तो अंग्रेज है, ये तो गलती करेगा ही नहीं। तो आखिरी में उन्होंने अपना ग्रामेटिकल मिस्टेक सुधारी और कॉन्फिडेंस से बोला, यस, आई आर द स्टेशन मास्टर। अब अंग्रेज बार बार बोल रहा था, यू आर द स्टेशन मास्टर, तो वो समझ गए कि यार आग लगाना चाहिए, मैं तो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, ये अंग्रेज है, ये तो सही बोल रहा होगा, यू आर द स्टेशन मास्टर। तो उन्होंने फाइनली गलती सुधार दी, यस, आई आर द स्टेशन मास्टर। तो ये बड़ा अच्छा जोक है, बहुत पुराना है, इसी तरह की जरूरत पड़ने पर सुनाते हैं। तो आप भी किसी पार्टी में, इफ यू वांट टू स्टील द शो, बट फर्स्टली बी श्योर दैट द पीपल आर एजुकेटेड पीपल और नॉट, अदरवाइज वो पूछेंगे, अच्छा फिर क्या हुआ। ओके ओके ओके, चलिए इसमें थोड़ा सा आगे क्रिएटिविटी करें। सारिका से शुरू करते हैं, हम लोग बहुत बोलते हैं। Okay. I mean, nobody reveals one's disabilities knowingly. मेरा मतलब है कि कोई भी अपनी कमियां खुद से उजागर, मतलब जानबूझकर उजागर नहीं करता। सर, यू आर म्यूट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तुमने बहुत खूबसूरत सेंटेंस बनाया है सारिका। आई मीन नोबडी रिवील्स वंस ड्रॉबैक और ड्रॉबैक वनसेल्फ। कोई भी जानबूझ के अपनी गलती बताता नहीं है। अपर्णा दी। Very good, very good. Um,
once upon a time, I was explaining something to one guy, but he was not getting me properly in English. So I said in Hindi with the proper way, I mean dash dash dash. मैं एक व्यक्ति को कुछ समझा रही थी, वो समझ में नहीं आया, फिर मैंने उसको हिंदी में समझाया तो वो समझ गया। रेणु भाभी, I mean to say, no work is a small work. कोई भी काम छोटा नहीं है। मेरा मतलब है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेरा पूनम, कहने का मतलब कहने का मतलब है। हाँ। I mean, there are politics in our country. मेरा मतलब है कि हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स है। ऋतु, कम अगेन पूनम प्लीज। I mean there is politics in our country. करेक्ट। ऋतु, पूनम थोड़ा बच्चों को दिखाओ ना अपना, तुम्हारी जो वॉइस क्वालिटी है वो क्लियर नहीं है, उसका क्या कारण है? actually she is sitting under the fan and her fan is disturbing her. So that I always said, used to say her, please switch off your fan. And she's keeping a remote control beside her, but she forget. actually, I asked my children. They are saying you use headphones, and I'm not comfortable in headphones. So मोबाइल का थोड़ा सा हाइट बढ़ा के रखो ना पूनम, बिल्कुल फेस के आसपास। yes, sir. ओके नेक्स्ट। Okay. I mean she looks like her mother. मेरा मतलब है कि वह उसकी माँ के समान दिखती है। अरे बच्चों, अच्छा आ गया। अपना सीसी ऑन कर लो अगर ना हो तो। आई मीन शी रिजेम्बल्स टू हर मॉम। बताया। Resembles to her. मेरा मतलब है वो अपनी माँ पे गई है या अपनी मम्मी की जैसी दिखती है। हमने ये शब्द अभी हाल ही में शाम के 6 बजे के नए बैच में दिया है बच्चा। तो वहाँ एक लड़की है, मतलब मैरिड है, निधि। वो अपने इंट्रो में, अभी इंट्रो चलता है वहाँ, तो इंट्रो में रोज बोलती माय सन राहुल रिजेम्बल्स टू हिज फादर। तो वो बार बार रोज सुनाई देता है, अपने इंट्रो में रोज बोलती। ओके नेक्स्ट। ऑल आर डन। ओके, राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस। इसका मतलब है ऑब्लिक। इसका मतलब होता है ऑब्लिक। इसका अर्थ है ऑब्लिक। इसका अर्थ होता है पूनम made na last sentence Ritu's go. Yeah, now Ritu's go. I have seen that sentence. That sentence belongs to simple present tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject
and the subject is its. I will put the apostrophe S on it. Then I will take the verb, and the verb is mean. It's mean. Very nice, Ritu. Thank you. And after Ritu, whose go is it? Whose go is it? Poonam's go. Thank you. Poonam, it's Yes, Poonam's go. It's yes, Poonam's go. yes, sir. Sir, 1 minute. I'm actually someone. Okay, okay. Take your time. Meanwhile, should I call anybody else? Parna, Sir, can Renu. I? Yes. Yes, sir. Renu Bhavi, would you like to or should I? Okay, I'm. This sentence belongs to present simple. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the introductory word, and the introductory word is subject is it. Lastly, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is mean, and I will put s with the mean. Because पूरा Because the बोलो, because subject is singular number, so I will put the s with the first form of the verb and put dash dash dash. It means, इसका मतलब है. बच्चों तुम लोग को आश्चर्य होगा जान के कि अच्छे अच्छे इंग्लिश मीडियम वाले पता नहीं क्यों ये गलती कर जाते हैं, वो इट्स बोल देते हैं। अब उसको देखो तो वो किस ग्रामर में रखोगे, है ना? ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ग्रामर लिखी हुई एक वचन है तो क्रिया को एक वचन बनाने के लिए ऐसे एस लगाते हैं और नाउन को बहुवचन बनाने के लिए ऐसे एस लगाते हैं, क्योंकि सारे नाउन एक वचन पैदा होते हैं तो उनको एस लगा के बहुवचन बनाते हैं। सारी क्रियाएं बहुवचन पैदा होती है, उनको एस लगा के एक वचन बनाते हैं। तो इसको एक वचन बनाने के लिए एस लगाया क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे पर असर डालते हैं और हमारे समाज के हिसाब से क्रिया को कर्ता के हिसाब से बदलना होता है। ये कहाँ तक उचित या अनुचित है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हमने ये उदाहरण दिया था, ये केवल इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रितु को, कि हमारे यहाँ स्त्री शादी के बाद बदलना शुरू करती है। सबसे पहले उसका सरनेम बदलता है, फिर धीरे धीरे वो आदत बदलती है, रहन सहन बदलती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसको ऐसे हम इसलिए जोड़ देते हैं कि आपको ये मूल चीज याद रहे कि कर्ता कर्ता एक पुरुषवाचक शब्द है और क्रिया एक स्त्रीवाचक शब्द है, तो क्रिया को कर्ता के हिसाब से बदलना होता है। और फिर सवाल आता है कि पास्ट सिंपल में ऐसा क्यों नहीं होता, तो उत्तर है कि पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आता है और सेकंड फॉर्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने परिवर्तन होते हैं पहले रूप में होते हैं। आईएनजी लगता है तो पहले रूप में लगता है, एस या यस लगता है तो पहले रूप में ही लगता है, दूसरे में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पास्ट सिंपल सबसे आसान टेंस माना जाता है। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, एवरीबडी वेंट, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सारिका हु इज रेडी। अपर्णा, वुड यू लाइक टू स्टार्ट क्रिएटिविटी? Sir, Okay, sir. I'm ready, sir. ओके सारिका। It means uh, you shouldn't adulterate much water in your milk. इसका मतलब है कि तुम्हें दूध में तुम्हें दूध में ज्यादा पानी नहीं चाहिए। अपर्णा दी।
It means nowadays all Indians are progressing in games world. इसका मतलब है कि आजकल इंडिया के लोग गेम्स में प्रगति कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में प्रगति कर। रेणु भाभी, As we are not able to speak fluently, it means that we should work hard. जैसा कि हम धारा प्रभा अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। पूनम, all the religious places are going to open from the first week of October. It means Corona has gone away. सभी रिलीजियस प्लेस खुलने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि कोरोना चला गया। ऋतु, It means the bus for Mumbai leaves at 9 p.m. इसका मतलब है कि मुंबई से जाने वाली बस 9 बजे छूटती है। Okay, write down the next sentence, ladies. इसका ये मतलब नहीं है कि डैश डैश डैश। इसका ये मतलब नहीं है कि डैश डैश डैश। पूनम, it's your go. yes, this sentence belongs to simple present tense, and this is a negative sentence. Firstly, I will take the introductory subject, and the introductory subject is it. Later on, I will take the borrow helping verb, and the borrow helping verb is does. पूनम, एक बार फिर से इसको सही करो। लेटर ऑन आई विल बोरो हेल्पिंग वर्ब। I will borrow the helping verb, and the helping verb is does. चलो थोड़ा सा चर्चा करते हैं ताकि ऋतु को क्लियर हो जाए। पूनम, तुम यहाँ डज क्यों उधार ले रही, डू क्यों नहीं ले रही? Because sir, it is the singular subject here, singular number. So I will take does with singular. Correct, go ahead. Uh, Later on, I will take the negative word not. Later on, I will take. एक चर्चा और करते हैं पूनम। नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम बताइए। In simple present tense. नहीं, एक नियम पूरी इंग्लिश याद है? अच्छा, तुम लेट आई थी, इनको याद है। एक नियम, इस क्लास का एक नियम और पूरी इंग्लिश जहां तक जाओगे वही नियम हमेशा रहेगा। ऐसा कुछ याद है पूनम? Sir, after helping verb we take not. अच्छा नहीं, चलो हम सारिका से पूछवा देते। सारिका बता। जी, सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द के बाद हेल्प नॉट लगता है। और इसको हम क्लियर और कर देते हैं बच्चों। हर वाक्य में, हर चैप्टर में सहायक क्रिया नहीं होती है। मैं व्यस्त नहीं हूं, इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो इसमें सहायक क्रिया होगी ही नहीं। आई एम नॉट बिजी, इसमें सहायक क्रिया है ही नहीं। देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब एट ऑल इन दिस सेंटेंस। तो फिर वो नियम तो आपका टूट जाएगा ना कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते। समझ गए ना? बी चैप्टर में होती ही नहीं है सहायक क्रिया, तो क्या करोगे? बी प्रेजेंट में सहायक क्रिया नहीं होती, बी पास्ट में नहीं होती, हाँ बी फ्यूचर में आ जाती है। तो दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें सहायक क्रिया होती ही नहीं है। तो फिर वो सहायक क्रिया वाला लफड़ा खत्म कर दिया हमने और ऐसा 3 उंगली का शुरू कर दिया।
अभी अगला जो टेंस आ रहा है ना तुम लोग का, जहां हमने ले जाके रोक दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद वाले टेंस में तुम लोग को बहुत मजा आएगा। वो नियम एकदम ऐसा सटीक बैठता है। चलो रितु, नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द के बाद, तो अपन ऋतु यहाँ पे तो नॉट नहीं लगा सकते। सब्जेक्ट के बाद तो कभी नॉट लगता नहीं है, राइट? लगता ही नहीं। आई नॉट तो बोल ही नहीं सकते, आई एम नॉट बोलना पड़ेगा। आई नॉट कमिंग ऐसा नहीं बोल सकते, आई एम नॉट कमिंग। तो ये इस नियम को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों को यहाँ सहायक क्रिया उधार लेनी पड़ती है। अंग्रेजों को एक और नया नियम बनाना पड़ा। तो यहाँ दो सहायक क्रिया होती है। पूनम, कौन कौन सी होती है दो? So do and does. When करेक्ट। चलो आगे बढ़ो। does not. Does not. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is mean. Later on, I will take the object, and the object is that or this. Poonam, you are wrong here. I'm sorry. Should I take anybody else help? Lastly, What is that? that is Meaning does not mean preposition. this. Let this. Sir, should I? Come again, I could. Sir, that is conjunction. चलिए सारिका से शुरू करते हैं क्रिएटिविटी, या हम एक शुरू कर देते हैं। It does not mean Sir, I am that you ready. can remain absent. It does not mean that you can remain absent. इसका ये मतलब नहीं है कि आप गोल हो जाते। सारिका। Okay. Sir, I am also using can chapter. Okay. It does not mean it does not mean you will play on the mobile throughout the day. इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरे दिन भर मोबाइल पे खेलते रहोगे. Okay, I'm ready. As Poonam said, ki all the mandir or spiritual monuments are opening from the first week of the October. So it doesn't mean ki you are wandering or you are going out without using without क्या Without following protocol. following protocol. It doesn't mean you are wandering without following protocol. जैसा कि पूनम ने कहा कि मंदिर वगैरह 1 अक्टूबर से खुल रहे हैं, तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिंदास घूमो बिना नियम का फॉलो। इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बोलोगी ना पढ़ना, बड़ा खूबसूरत लगेगा। जय गणेश। As Poonam said कि all the Religious places. Religious places. religious places opening from 1st of October. So it doesn't mean that you will be sorry, you will be wandering with you will be following. Yeah, I'm not getting. You will be wandering. without protocol. You will wander without protocol. हाँ. Renu Bhabhi. As Shubham is not well, he is feeling low. It does not mean that he will not recover.
जैसे कि शुभम को ठीक नहीं लग रहा है और उसे थोड़ा कमजोरी लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवर नहीं होगा। पूनम, as Renu, you are in dieting. It does not mean that you cannot eat anything. Okay. रेणु, आप डाइटिंग पर, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो। ऋतु, It doesn't mean that he lacks self confidence. इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है। Okay, ladies, it is 1:55. I am giving you one interview. अगर स्क्रीन पे देख के नोट कर सकते हो, if you can note down. Don't be silly. Have I given you? Yes, sir. Nearness breeds contempt. Yes, Yes, sir. you have. In no time. Yes, sir. What do you think you are? No, sir, you haven't. What do you think you are? तुम अपने आप को क्या समझते हो? ऐसा? हाँ हाँ हाँ, दिया है। yeah. Contentment is happiness. Yes, sir. Mind your own business. Yes, sir. To be a dog in a manger. No, sir. Don't अच्छा, माइंड योर ओन बिजनेस सुना होगा बेटा तुम लोगों ने, हमने दिया नहीं शायद। सर, Yes, माइंड सुना है। योर ओन बिजनेस दिया है अपने सर। काम पे माइंड योर, ध्यान दो। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस दिया है जब रेणुका भाभी थी ना। ये लिख लो ना यार, स्क्रीन पे आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन द स्क्रीन। टू बी अ डॉग इन अ मेंजर। टू बी अ डॉग इन अ मेंजर। To be a dog in a manger. Manger, correct. वर्ड मीनिंग में कहीं साइड में लिखो मेंजर। मेंजर इज ए नाउन। ऑब्लिक सॉरी, इक्वल टू करके लिखो, बराबर का निशान लगा के। अ बॉक्स और और TROUGH, ट्रॉफ। ट्रॉफ, अ बॉक्स और अ ट्रॉफ। TROUGH, ट्रॉफ। दोस्तों, अमेरिका में कुत्तों के रहने के लिए घर बनाया जाता है, वहां की परंपरा, उसको मेंजर कहते हैं। टू बी अ डॉग इन अ मेंजर। इट इज वेरी टफ टू गेस। Can I try, sir? ओके, गो अहेड। कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक। कब? अभी भी नहीं आ रहा। सर, कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी है, ओ भाई। इसे ध्यान देना लेडीज, बनना शब्द से एंड हो रहा है सेंटेंस।
अर्थात पूरा ये वाक्य एक क्रिया की तरह कार्य कर रहा है। आप इसका प्रयोग किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। व्हाट्सएप का प्रयोग करें दिन भर में जब भी मौका मिले, और कैटेगरी भी बदल के बना सकते हैं आप, इन्वर्टेड, नेगेटिव, WH, जो बनाना चाहें। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं हिंदी का, तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो भाई? वाई आर यू Be a dog in a manger. Being a dog. Why are you being a dog in a manger? Why are you being a dog in a manger? कबाब में हड्डी क्यों बन रहे भाई? गो गो अवे। एक और बता देते हैं, कबाब में हड्डी मत बनो। Don't be a dog in a manger. Don't be Very a dog nice, in a manger. Ritu. Wow. Don't be a dog in a manger. बेटा कबाब में हड्डी मत बनो, जाओ, go away. Sir, should we be a dog in a manger? क्या हमें with another people, क्या हमें दूसरे लोगों के साथ कबाब में हड्डी बनना चाहिए? Preposition is wrong. नहीं, ऐसी स्थिति में सारिका अपन पूरा दूसरे नंबर पे एक पूरा वाक्य रख देते हैं, या पहले नंबर पे, यार दे आर सिटिंग नाइसली हैप्पीली टॉकिंग टू ईच अदर, शुड वी बी इन अ डॉग इन अ मैंजर, ऐसे बोलते हैं उसमें। यार कितने अच्छे से प्रेम पूर्वक बातें कर रहे हैं, और क्या अपने को चलना चाहिए वहां और कबाब में हड्डी बनना चाहिए? ऐसा। वैसे बी चैप्टर में सबसे ज्यादा बनेंगे इसके सेंटेंस, जैसे ही इज अ डॉग इन अ मैंजर, वो कबाब में हड्डी। इज, समझ गए ना? बी अपना रूप बदल लेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जरूर एक एक सेंटेंस ऐसा भेज देना बेटा। He is चलिए, going to be a dog in a manger. वह वाह कब वाह, बनने जा रहा है? वेरी नाइस, क्या बात है, आत्मसात कर लिया रे, गुड। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस। Okay, sir. Thank you. Have a nice Thank you, sir. Have a nice day.